ફરી એક વખત તિરંગા ઝંડા લહેરાવીને આપણે આપણા સ્થાન ઉપર બેસીને આદરણીય રક્ષામંત્રીશ્રીને આવકારીશું. આ અમારી સુરતની જનતાનો આવકાર છે. આપણે સૌ આપણા સુરતની જનતાની ભાવના વ્યક્ત કરીશું. આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે અહીંયા આપણા પોતાના સાંસદ અને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની કેબિનેટમાં સ્થાન પામનાર આપણા પોતિકા સાંસદ અને દેશના મંત્રી આદરણીય દર્શનાબેન જરદોશ. હું વિનંતી કરીશ સંસ્થાના મંત્રી સીપી વાનાણી અને મનહરભાઈ સાસપરાને કે આપણા આદરણીય સાંસદ અને દેશના મંત્રી માનનીય દર્શનાબેન જરદોશને આપણી વચ્ચે આ કાર્યક્રમમાં આવકારશે. નમસ્કાર. રાષ્ટ્રના રક્ષણ કાજે વીરગતિ પામેલ વીર જવાનોના પરિવારોના ઋણ સ્વીકાર માટે આજે શહીદોને સલામ 5મા સન્માન સમારોહ કાર્યક્રમમાં આયોજન છે. આ ગૌરવવંતા પ્રસંગે ઉપસ્થિત સમારોહના અધ્યક્ષ રાષ્ટ્રના રક્ષા મંત્રી શ્રી આદરણીય રાજનાથસિંહજી, શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ, માન્ય મંત્રી શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનછેરિયા, મેયરશ્રી, બધા ધારાસભ્યશ્રી અને રાજ્ય મહાનુભાવો, વીર શહીદોના પરિવારજનો, ટ્રસ્ટીશ્રીઓ, મીડિયાના મિત્રો, પોલીસ મિત્રો, સુરક્ષા જવાનો, આપ સૌ ઉપસ્થિત સુરતના સાથી મિત્રોને હું સાદર આવકારું છું. આપ સૌને હાજરીના કાર્યક્રમ વધુ ગૌરવવંતો બન્યો છે. આપણા ભારત દેશની સરહદની રક્ષા માટે અનેક વીરોએ બલિદાન આપ્યા છે અને આજે પણ અનેક જવાનો પોતાના પરિવાર, પોતાના જીવનની પરવા કર્યા વગર રાત દિવસ ખડે પગે ઉભા રહીને માતૃભૂમિની રક્ષા કરતા કરતા શહીદી ઓરે છે. આ દેશ શહીદો હરહંમેશ યાદ રાખશે. કહેવાય છે કે વીરતા વારસામાં અને ખુમારી ખાનદાનીમાં હોય છે, જેના ક્યાંય વાવેતર થતા નથી. મૃત્યુ પછી પણ જેમના નામ અમર રહેશે એવા નિર્ભય સૈનિકો આપણા દેશનું ગૌરવ છે. આવા વીર જવાન શહીદોના પરિવારોને મદદરૂપ થવા માટે વર્ષ 2017માં પરમ પૂજ્ય મોરબી બાપુની રામકથાથી મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટની સ્થાપના થઈ. આ ટ્રસ્ટ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 451 પરિવારોને 11 કરોડથી વધારે રકમની સહાય કરવામાં આવી છે. હવે આજના શહીદોના સલામ 5મા સન્માન સમારોહમાં 131 પરિવાર વીર જવાન શહીદોના પરિવારને દેશના રક્ષણ મંત્રી શ્રી રાજનાથસિંહજીના હસ્તે 3,27,00,000 રકમ એનાયત કરવામાં આવશે. જય ભારત. આપણે આપીને એમને શું આપી શકવાના, એમના પ્રત્યે ઋણ છે એ આપણે ક્યારેય નહીં ચૂકી શકીએ. આ તો એમના પ્રત્યે પ્રેમ અને સંવેદના વ્યક્ત કરવાનો ફક્ત એક નાનો નમ્ર પ્રયાસ છે. મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટ પ્રમુખ તરીકે હું આપ સૌને આહવાન કરું છું કે આવો આપણે સૌ માતૃભૂમિના કાજે પોતાના પ્રાણની કુરબાની આપનાર શહીદોને અને એમના પરિવારને લાખ લાખ વંદન કરીએ, તેમજ તેમને તન મન ધનથી ઉપયોગી થઈએ. અમર શહીદોના લોહિયાળ બલિદાનને સલામ કરીએ. એકવાર સૌને સંવેદનાભર સ્વાગત કરું છું. અસ્તુ. જય હિન્દ. ભારત માતા કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર આદરણીય પ્રમુખ શ્રી મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટના લવજીભાઈ બાદશાહના આ સ્વાગત ઉદબોધન પછી કયા સંજોગોમાં આ સંસ્થાનો પ્રારંભ થયો અને અનેક પ્રકારના કામ માટે સામાજિક સંસ્થાઓ હોય છે, પણ વીર શહીદ પરિવારો હોય એ પરિવાર માટે ચિંતા કરનારી સંસ્થા બહુ જ ઓછી હોય છે. ચિંતા કર્યા પછી એને મદદ રૂપે, એને સહાય અને સન્માન રૂપે એના ઘર સુધી પહોંચનારી સંસ્થા
કદાચ એના કરતા ઓછી હોય છે અને કોવિડ જેવા કપરા કાળમાં પણ શહીદ પરિવારોના નિવાસે જઈને એમના સુધી આ શૌર્ય રાશિ અને સન્માન પહોંચાડનાર સંસ્થા કોઈના નેતૃત્વમાં અહીંયા સુધી પહોંચી હોય તો એ આ સંસ્થાના સ્થાપક પ્રમુખ આદરણીય નાનુભાઈ સાવલિયા છે. હું વિનંતી કરીશ નાનુભાઈ સાવલિયાને કે આ સંસ્થાની અત્યાર સુધીની જે પ્રવૃત્તિ છે એનાથી આપ સૌને માહિતગાર કરે. આદરણીય નાનુભાઈ સાવલિયા. જય હિન્દ. આજના શહીદ પરિવાર સન્માન સમારોહમાં આપના રક્ષા મંત્રી માનનીય રાજનાથસિંહજી તેમજ ભારત સરકારના મંત્રી દર્શનાબેન જરદોશજી તેમજ નવનિયુક્ત મારુતિ વિરજોના પ્રમુખ લવજીભાઈ બાદશાહ તેમજ તમામ રાજકીય મહાનુભાવો, મેયરશ્રી, માનનીય મંત્રી શ્રી પ્રફુલભાઈ પાનછેરિયા, માનનીય તમામ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીશ્રીઓ તેમજ આજના સમારોહમાં શહીદ પરિવાર જેમને આપણે આજે સન્માનવા જઈ રહ્યા છીએ એવા પરિવારજનો, મિત્રો, વડીલો, આપણે મારુતિ વર્ધન ટ્રસ્ટની સ્થાપના 2017માં મોરારી બાપુની રામકથાથી કરી. ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં આપણે 5મો કાર્યક્રમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અત્યાર સુધીમાં આપણે 320 પરિવારને રાશિ આપી અને સન્માનિત કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણને 131 પરિવાર આપણને મળ્યા છે. એને આપણે આજે રાશિ અર્પણ કરી અને એને સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ. એને આપણે આપીને તો શું આપી શકી જેને દેશના સીમાડાનું રક્ષણ કરતા કરતા પોતાની પ્રાણની આહુતિ આપી દીધી. જ્યારે આમાં આર્મીમાં કે બોર્ડર ઉપર ભરતી થાય છે ત્યારે ખૂબ નાની ઉંમરમાં તમામ પ્રકારના મોજશોખ, પોતાનો પરિવાર, સમાજ, તમામ પ્રકારના તહેવાર બધું છોડી અને કોઈ દિવસ રજા રાખ્યા વગર, દિવસ રાત ગણ્યા વગર, તાપ હોય, વરસાદ હોય, ઠંડી હોય કે ગમે એવી કપરી પરિસ્થિતિમાં ડ્યુટી કરે છે અને ઘણી વખત ડ્યુટી કરતા કરતા દુશ્મનની ગોળીથી ને એ લોકો શહીદી વરે છે. ત્યારે એમના પરિવાર પર બહુ ખૂબ જ ભારણ આવી જાય છે. નાના નાના બાળકો હોય, વૃદ્ધ મા બાપ હોય, ઘરમાં કમાવા વાળું કોઈ ન હોય, વિધવા પત્ની હોય નાની ઉંમરમાં, ત્યારે એમને દેશની જનતાની એક નૈતિક ફરજના ભાગ રૂપે આપણે કાર્ય કરી રહ્યા છીએ. એનું ઋણ તો આપણે ક્યારેય ચૂકવી ન શકીએ, કારણ કે એમણે તો બલિદાન આપી દીધું છે. પોતાના પરિવારને રઝળતો મૂકીને આપણા માટે ખપી જાય છે. એવા પરિવારનું આપણે સન્માન કરવા આજે જઈ રહ્યા છીએ અને આ એક સુરતની ધરતી ઉપર જ શક્ય બન્યું છે અને એના આપણે સૌ સાક્ષી છીએ. આપણે 2017થી કાર્ય કરતા આવ્યા છીએ તો એમાં તમારો પણ અમને ખૂબ જ સહયોગ મળ્યો છે. મારુતિ વર્ધન ટ્રસ્ટને એક ટ્રસ્ટ કે એક સંસ્થા અકેલી કાંઈ ન કરી શકે. આપના સહયોગ ક્યારેય શક્ય ન બને. જ્યારે જ્યારે જરૂર પડી, જ્યારે જ્યારે બોલાવ્યા ત્યારે એક ફોનથી હજારોની સંખ્યામાં માણસો ભેગા થયા છે, હજારોની સંખ્યામાં સન્માન આપવા આવ્યા છે. એ બદલ આપ સૌનો આભાર માની અને મારી વાતને પૂરી કરું છું. આભાર. પોતાના એક નાનકડા કાશ્મીરના પ્રવાસ દરમિયાન એમણે ત્યાં સતત જાગૃતિ સાથે પહેરો ભરતા જવાનોને જોયા અને એમને થયું કે આ જવાન કોના માટે અહીંયા ઊભા છે. એ જવાનો મારી રક્ષા કરવા માટે ઊભા છે ને હું અહીંયા ફરવા નીકળ્યો છું. આટલા એક સંવેદના સભાર વિચાર નાનુભાઈ સાવલિયાને આવ્યો ને એમાંથી આ સંસ્થાના જન્મ કરવાનો વિચાર એમને પ્રગટ્યો અને ત્યાર પછી જે માહિતી મળી, સિયાચીન ગ્લેશિયરના માઇનસ ટેમ્પરેચરમાં હાડ ગળી જાય, ગાતડો ગળી જાય એવી ઠંડીમાં પણ ત્યાં જે સૈનિકો ઊભા છે, રાજસ્થાનની સરહદે બળબળતા રણમાં લૂ વાતી હોય ને રેતીના તોફાનની વચ્ચે પણ એ ત્યાં ઊભા હોય છે. આપણે દિવાળી મનાવતા હોઈએ અને ત્યાં ગોળીઓના ફટાકડા એ લોકો સહન કરતા હોય છે. એ સ્થિતિ જેમણે સહન કરી છે, એમના પ્રત્યે સંવેદના જેના મનમાં જન્મી છે, જેમના હૃદયમાં જન્મી છે,
એ વ્યક્તિઓનું આ ટીમ વર્ક એટલે મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટ છે અને એના દ્વારા આ કાર્યક્રમ સતત અને સતત યોજાઈ રહ્યો છે. કાર્યક્રમનો શુભારંભ પણ કેવી રીતે થાય છે? આદરણીય સંત પૂજ્ય મોરારી બાપુની રામકથાને રાષ્ટ્રકથા બનાવીને જેમણે આ સંસ્થાનો પ્રારંભ કર્યો છે એવા મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટની પ્રવૃત્તિઓ વિશે વાત કરવા માટે હું આપણને અહીંયા નિમંત્રિત કરીશ. આ મંચ ઉપર બબ્બે પદ્મશ્રી મહાનુભાવો ઉપસ્થિત છે. આદરણીય મથુરભાઈ સવાણી અને આદરણીય સૌજીભાઈ ધોળકિયા કે જેમના પ્રાંગણમાં આ કાર્યક્રમ યોજાઈ રહ્યો છે અને આપણને સંસ્થા વિશે માહિતી આપવાના છે. એ આદરણીય પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણી છે અને અહીંયા મંચ ઉપર જે શહીદ પરિવારો બેઠા છે એનું ત્યાર પછી અહીંયા આપણે સન્માન કરવું છે, અભિવાદન કરવું છે અને એને શૌર્ય રાશિ અર્પણ કરવી છે. બધાને જ આપણે અહીંયા મંચ ઉપર શૌર્ય રાશિ અર્પણ કરવાનો કાર્યક્રમ કદાચ ન કરી શકીએ પણ હૃદયમાં એ ભાવ છે એટલે પ્રતિકાત્મક રીતે આદરણીય રક્ષામંત્રીજીના હસ્તે થોડા જે પ્રતિકાત્મક ચેષ્ટાના ભાગરૂપે શૌર્ય રાશિ અર્પણ કરીશું. બાકીની રાશિ બધાને જ મળશે જે અહીંયા ઉપસ્થિત છે એને, પણ એમના સ્થાન ઉપર અને એમના બેંક એકાઉન્ટમાં જે પ્રતિવર્ષની વ્યવસ્થા છે એ પ્રમાણે કરવામાં આવશે. હાલ તરત હું આપ સૌને અહીંયા આ સંસ્થાની પ્રવૃત્તિ વિશે માહિતગાર કરવા માટે વિનંતી કરીશ પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણીને. મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટ આયોજિત શહીદોને સલામ કાર્યક્રમમાં દેશના સંરક્ષણ મંત્રી અને ભારતના એક પીઢ નેતા એવા રાજનાથસિંહજી, આપણા સંસદ અને રેલ રાજ્યમંત્રી કેન્દ્રી દર્શનાબેન, મંચ ઉપર ઉપસ્થિત તમામ ધારાસભ્યશ્રીઓ, મંત્રીશ્રીઓ, મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટના તમામ ટ્રસ્ટીઓ, ઉપસ્થિત અમારા વડીલો, અમારી માતાઓ, બહેનો, ભાઈઓ, પત્રકાર મિત્રો અને ખાસ કરીને 131 શહીદ પરિવારના પરિવારજનો આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. મિત્રો, હર કોઈ વ્યક્તિમાં રાષ્ટ્ર પ્રત્યે ભાવ હોય છે અને એ ભાવ પ્રગટ કરવા માટેના જ્યારે જ્યારે પ્રસંગ આવે તે પ્રસંગમાં રાષ્ટ્રપ્રેમી માણસ પોતે સામેલ થતો હોય. આ સુરતની ધરતી સમગ્ર દુનિયામાં આ દેશનું ગૌરવ વધે એ માટે હર હંમેશ કાર્યક્રમો કરે છે. આ સુરતવાસી, અમારું સુરતનું પાણી, અમારા સુરતના બિઝનેસમેનો, અમારા સુરતના સામાજિક લોકો, અમારા સુરતના આમ નાગરિકો, એમાં એક દેશ પ્રત્યેની ભાવના અદ્ભુત છે અને એ અદ્ભુત ભાવના પ્રગટ કરવા માટે આ પ્રકારના વિચારો આવતા હોય કે અમારા દેશની રક્ષણ. આપણે દુનિયાના દેશોમાં જોઈએ છીએ કે બે દેશ વચ્ચે યુદ્ધ થાય. આપણે રશિયા યુક્રેન વિશે જોયું, હમણાં જ ઇઝરાયલ અને પેલેસ્ટાઇન વચ્ચે જોયું. ત્યારે દેશના નાગરિકો અન્ય દેશોમાં જઈ અને આશરો લેવા માટે કરગરતા હોય અને અમારા દેશના સૈનિકો દુનિયાભરના અમારા દુશ્મનોને જડબાતોડ જવાબ દેતા હોય. એ અમારા ભારતના વીરોની સેના, એ અમારા અદ્ભુત ભારત. દુનિયાના જે ત્રાસવાદ કે જે દેશને રક્ષણ કરતા અમારા દેશ ઉપર, અમારા દેશને નુકસાન પહોંચાડવા માંગતા હોય એની સામે સાચીએ લડવું. દેશની રક્ષા કરવા માટે દુનિયાના દેશોના સેના સાથે અમારા દેશના બહાદુર સૈનો સામે સાચીએ લડે અને કોઈ વાર લડતા દેશની રક્ષા કરતા એક શહીદ થઈ જાય અને એ શહીદ પરિવાર માટે 141 કરોડ લોકો દેશના જે કઈ ભાવ છે એ ભાવ પ્રગટ કરવા માટેનો આ કાર્યક્રમ છે.
2.5 લાખ રૂપિયા કદાચ આપણે આપશું એ એક ઔપચારિક વ્યવસ્થા છે, પણ દેશ પરિવારની સાથે છે. દેશ જે શહીદ પરિવાર છે, એમના બાળકો છે, એમની પત્ની છે, એમના મા બાપો છે, એમનું પરિવાર છે, એનું ગામ છે, એ આખા લોકો એવું ફીલ કરે કે દેશ અને દુનિયા અમારી સાથે છે. એ માટે મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે. આ સુરત હર હંમેશ હર કોઈ જગ્યાએ સારું કામ કરે છે. આ મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટનો મૂળ ઉદ્દેશ છે કે દેશની સરહદ કરતા સૈનિક પરિવારોને આ એક ફીલ થવું જોઈએ, અહેસાસ થવો જોઈએ કે દેશ અમારી સાથે છે. અને એ જે મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટનો જે પ્રયાસ છે, એ પ્રયાસને સુરતના ઇન્ડસ્ટ્રી, અમારા અહીંયા ઉદ્યોગપતિઓ બધા બેઠા છે, અમારા ગોવિંદભાઈ હોય, અમારે સૌજીભાઈ ધોળકિયા હોય, અમારે લાલજીભાઈ હોય, આ બધા ઉદ્યોગપતિઓએ અને આમ લોકોએ પણ સહયોગ કાયમ કર્યો છે. અને આ અહીંયા વર્ષોથી આ બધું કામ થઈ રહ્યું છે. એટલે અમારે લવજીભાઈ બાદશાહ હોય, અમારે નનુભાઈ સાવલિયા કઠિન પરિસ્થિતિઓમાં આ બધા કામો કરી અને એક પ્રયાસ થયો છે. એટલે સુરતની ધરતી ઉપર એક રાષ્ટ્રીય કથા થઈ અને એ રાષ્ટ્રીય કથા થઈ અને આ એક આખી વ્યવસ્થા ઊભી થઈ અને એ વ્યવસ્થા હર સમયે દેશના સૈનિકોને પ્રોત્સાહિત કરવા માટેની છે. એમને આપણે વધારેમાં વધારે એમના પરિવારને એવો અહેસાસ કરાવવા માંગીએ છીએ કે દેશ તમારી સાથે છે અને એ દેશ છે જ. સરકારનું કામ કરે છે, સંરક્ષણ વિભાગ પણ એમનું જે કંઈક એમનું દાયિત્વ છે એ નિભાવે સારી રીતે, પણ આમ નાગરિકની પણ એક ફરજ બને છે અને એ ફરજ પૂરી કરવા માટેનો આ કાર્યક્રમ છે. એટલે મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટ સાથે જોડાયેલી તમામ વ્યવસ્થાને આપણે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપી અને આજે આપણી વચ્ચે જે શહીદ પરિવારો છે એને હું હૃદયથી વંદન કરીને મારી વાત પૂરી કરું છું. આભાર. ખૂબ ખૂબ આભાર પદ્મશ્રી મથુરભાઈ સવાણીનો. જે શહીદ પરિવારોને કેન્દ્રમાં રાખીને આ કાર્યક્રમ બન્યો છે, શહીદ પરિવારો આ મંચ ઉપર અહીંયા સાદર સ્થાન લઈને બેઠા છે. એમાંથી પ્રતિકાત્મક રીતે આપણે 2 તબક્કામાં 10 પરિવારોને, પહેલા 5 અને પછી 5 પરિવારોને અહીંયા એમને સન્માનિત કરીશું, સન્માન પત્ર પણ અર્પણ કરીશું અને સહાયતા રાશિના ડમી ચેક અહીંયા આપીશું. બાકીની એકચ્યુઅલ જે રકમ હશે શૌર્ય રાશિની એ સીધી એમના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થાય એ પ્રકારની પ્રતિવર્ષ પરંપરા છે. એ મુજબ આ કાર્ય આગળ વધવાનું છે. मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी को प्रार्थना करूंगा कि मंच के ऊपर शहीद परिवार आएंगे, उनके साथ जुड़ेंगे. आदरणीय दर्शनाबेन जरदोश, हमारे प्रमुख आदरणीय लवजीभाई बादशाह, और उनके साथ जुड़ेंगे हमारे स्थापक प्रमुख आदरणीय ननुभाई सावलिया, इनके साथ जुड़ेंगे आदरणीय गोविंद भाई धोळकिया, और उनके साथ जुड़ेंगे आदरणीय मथुरभाई सवाणी. दूसरी टीम, दूसरे 5 के लिए भी हम आगे बढ़ाएंगे. मैं सबसे पहले विनती करता हूं, नीलम सिंह जी चिप, शहीद जवान नीलम सिंह जी छिप का परिवार कृपया मंच ऊपर यहां पधारे. मैं सादर निमंत्रित करूंगा प्रमोद जी नेगी के परिवार को. प्रमोद जी नेगी परिवार, प्रमोद जी नेगी परिवार अभी सम्मान और शौर्य राशि स्वीकार कर रहे हैं. मैं सादर निमंत्रित करूंगा इसके बाद अरविंद कुमार उज्जवल सिंह जी. अरविंद कुमार उज्जवल सिंह जी, इनका परिवार सादर निमंत्रित है इस मंच पर. शुरू भारत माता की जय का नारा आपने शुरू किया, कृपया शुरू रखिए.
विनोद कुमार जी, इनकी पत्नी और बेटा, पत्नी सुमन पाल जी और बेटा योगेंद्र सिंह जी यहां उपस्थित है। बाद में मैं विनती करूंगा देबाशीष बिस्वाल जी, जिनकी माता जी ममता जी बिस्वाल और जिनकी धर्मपत्नी संगीता जी नायक यहां उपस्थित है। देबाशीष जी विश्वाल का परिवार, इसके बाद देबाशीष जी विश्वाल। देवाशीष जी बिस्वाल सम्मानित होने के समय आदरणीय रक्षा मंत्री जी उनसे पूछ रहे हैं, इसलिए नारे लगाने की बजाय हम तिरंगा फ्लैग दर्शा के भी उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार है सारे महानुभावों का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का। दूसरे 5 के लिए मैं उनको विनती करूंगा बाद में, लेकिन अभी मैं विनती करता हूं हमारी लोकप्रिय सांसद एवं नरेंद्र भाई मोदी की कैबिनेट में हमारा प्रतिनिधित्व कर रही ऐसी आदरणीय मंत्री माननीय दर्शनाबेन जरदोशी को। સૌને નમસ્કાર। મારુતિ વીર જવાન ટ્રસ્ટ સુરત દ્વારા શહીદોને સલામ આ 5મા કાર્યક્રમ સંવેદનશીલ કાર્યક્રમમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત દેશના રક્ષામંત્રી, ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને એક સિનિયર કેબિનેટ મંત્રી એવા શ્રી રાજનાથસિંહ જી, જેઓ આ કાર્યક્રમમાં બીજી વાર સુરત પધારી રહ્યા છે, ખાસ એમનું આપણે હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ। રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલભાઈ પાનસેરિયા, મેયર શ્રી દક્ષેશભાઈ માવાણી, બંને ધારાસભ્યશ્રીઓ સંગીતાબેન અને પ્રવીણભાઈ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ શ્રી નિરંજનભાઈ ઝાંઝમેરા, બિટ્ટાજી અને જે લોકોએ આપણને સૌને ભેગા કર્યા છે અને એક સરસ ઉમદા કામની શરૂઆત કરી છે એવા આમ તો 2 આમંત્રણ કહેવાય। નાનુભાઈએ ખૂબ સરસ રીતે કોર્ડિનેશન કરીને સંસ્થા ચાલુ કરી, પણ હમણાં નવા વરાયેલા પ્રમુખ શ્રી લવજીભાઈને જેઓ પહેલી વખત સરસ મજાનું આપણને સ્વાગત પ્રવચન પણ કર્યું, આપણા વડીલ એવા ગોવિંદ કાકા, પદ્મશ્રી સવજીભાઈ જેમના પ્રાંગણમાં આપણે બેઠા છે, પદ્મશ્રી મથુરભાઈ, લાલજીભાઈ, સૌ મહાનુભાવો, ડેપ્યુટી મેયર શ્રી, શાસક પક્ષના નેતાશ્રી, पत्रकार मित्रों, शहीदों, परिवार सहित सब परिवार जो ऑल ओवर इंडिया से आए हैं और सूरत की जनता। वैसे तो मैं गुजराती में शुरुआत करी, लेकिन मैं बताना चाहती थी कि राजनाथ जी के
नेतृत्व में कैसे काम होता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से 2047 में भारत को विश्व गुरु की ओर ले जाने का संकल्प किया है, ये हमारे कर्तव्य काल में जो कर्तव्य सरकार निभा रही है उसी के साथ में यहाँ नागरिक कर्तव्य के नाते जो लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे संकल्प बहुत बड़े होने चाहिए, हमारे अंदर गुलामी की मानसिकता नहीं होनी चाहिए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह हम लोगों को अपना नागरिक कर्तव्य निभाना चाहिए। वो लाल किले से कही हुई सभी बात ये मारुति वीर जवान ट्रस्ट ने यहाँ साबित कर दी है, उसका कर्तव्य निभाया है और एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह पूरे देश से जो शहीद हुए परिवारों को यहाँ पे एकत्र किया है। आज 500 से ऊपर लोग को 5 साल में ये सहाय देने का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जो दिल्ली के अंदर आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है, वहां राजनाथ सिंह जी ने एक कार्यक्रम की शुरुआत करी है। मैं 2 बात सिर्फ उनके बारे में बताना चाहूंगी कि वैसे तो हमारे रक्षा के जो भी नए फाइटर प्लेन आते हैं वहां उनकी पूजा करते हुए उनको लाना या हमारे जवानों का हौसला बढ़ाना, ऐसे तो बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन जो दिल्ली के अंदर हमारा कर्तव्य पथ बना है, वहां नागरिकों के सम्मान के साथ में शहीदों के सम्मान के लिए जो एक राष्ट्रीय स्मारक बना है, वहां उन्होंने एक बहुत अच्छे से सिस्टम शुरू करी है। पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कहीं भी शहीद होता है तो उनके लिए कुछ यादें होती है, लेकिन आज तक आजादी के 75 साल तक इतना हुआ नहीं था जितना जब नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में शुरुआत हुई और कर्तव्य पथ के ऊपर ही शहीदों के लिए एक पूरा स्मारक बना। और वो जो शहीद स्मारक है, अगर एक आपको जब भी मौका मिले जरूर आप वहां पे जाइए कि जो शहीद हुए हैं वहां उनके नाम के साथ की तख्तियां वहां पे है। और हर रोज शाम को 5 बजे एक कार्यक्रम होता है। जो लोग शहीद हुए हैं पहले 1962 से लेकर अब तक के जितनी भी लड़ाइयां हुई, उसमें जो भी परिवार वहां आते हैं उनको इनवाइट करते हैं और वो परिवार वहां पे श्रद्धांजलि वो शहीदों को सैनिक स्मारक के ऊपर देती है। वहां पे जो एक पिक्चर बताया है, 5 एक बड़े बड़े युद्ध जब हमारे यहाँ हुए थे उसके बारे में मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि परसों ही मुझे ऐसा एक अनुभव हुआ कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। मैं विकसित भारत संकल्प यात्रा जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही थी, वहां अरुणाचल के तवांग गई थी। तिब्बत और चीन की और भूटान की बॉर्डर पे आया हुआ पहला गांव, और वहां पे भी शहीद स्मारक बना है। वो शहीद स्मारक के साथ में एक म्यूजियम भी बना है। वैसे तो वो म्यूजियम के अंदर काफी यादें हैं। हम लोग अगर पुराना इतिहास देखें तो बहुत सारे लोगों के पिक्चर्स होते हैं, वहां से जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक लोग आए हैं। लेकिन इसके बाद में अगर कोई नेता वहां जवानों का हौसला बढ़ाने या कुछ स्मारक खड़ा करने के लिए गए थे, वो हमारे राजनाथ सिंह थे। और वहां जब उनका पिक्चर मैंने देखा शहीदों के साथ में, वो स्मारक के साथ में, तब सच में मुझे भी गर्व हुआ कि हमारी कोई भी जो सीमा है वो सुरक्षित है। और उनका जो हौसला है, उन्होंने जो अपने आप को एक अपना कर्तव्य निभाते हुए रक्षा मंत्रालय के नाते उन्होंने आज कल हम यहाँ से निकलकर कुल और प्रोग्राम था, लेकिन जिस तरह से मारुति वीर जवान ट्रस्ट की ओर से यहाँ पे स्वागत हुआ, जो एक तिरंगा के साथ में अच्छा सा माहौल हुआ और संवेदनशील कार्यक्रम में उपस्थित होके उनको जरूर ये उनको लगा कि यहाँ सूरत में आके उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, एक अच्छे कार्यक्रम के साक्षी भी वो बने। वैसे तो बहुत कुछ बातें बतानी है, सूरत का डेवलपमेंट भी उन्होंने देखा है, लेकिन यहाँ पे जो बहुत सारे लोग बैठे हैं, उद्योगपति बैठे हैं, अभी पिछले ही महीने जब हीरा बुर्ज का ओपनिंग हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्तों, तब उन्होंने अपने आप जिस तरह से पेंटागन के बाद में सबसे बड़ा डायमंड बुर्ज जो बनाया, इसके साथ में लवजी भाई से लेके मनहर भाई से लेके और भी कई उद्योगपति है, ननू भाई से लेके जो और व्यवसाय में है, फिर भी उन्होंने उनकी जो एक चीज जो मुझे हमेशा पसंद आई, मैं तो तीसरी बार ये उन्होंने मौका दिया मुझे वहां दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का, आपके साथ काम करने का, लेकिन उन्होंने जितना भी ये शहर से कुछ भी लिया कमाया वो उन्होंने वापिस किया।
और वही जो भावना थी, देश के प्रति जुड़ने की भावना थी, अपना नागरिक कर्तव्य बनाने की बात थी, वो आज सच में उन्होंने साबित कर दिया। एक अच्छी भावना के साथ में एक छोटी सी रकम शहीदों के परिवार के साथ जुड़कर उन्होंने ये कार्यक्रम में जुड़ने का मौका दिया। जब पहले कार्यक्रम में आए थे तब भी मुझे पता था, तब भी मैं ये कार्यक्रम में आपके साथ थी। दूसरा, पिछला जो कोविड वाला कार्यक्रम था, ननू भाई, मनहर भाई, हम लोग साक्षी है कि राजनाथ सिंह जी उन्होंने इतने अच्छे से उनके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर उन्होंने ये कार्यक्रम कर लिया था। और ये कार्यक्रम माध्यम से हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से माध्यम से ये शहीदों के साथ बातें करी थी। तो ऐसे संवेदनशील रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह जी आज हमें बहुत कुछ यहाँ पे अच्छे से मार्गदर्शन करने, अपने कार्यक्रम की शोभा देने पधारे हैं। तो मैं उनका सूरत में स्वागत भी करती हूँ। और जिस तरह से आप लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, एक देशभक्ति से भरा हुआ, संवेदना से भरा हुआ, और इसके साथ में जुड़ने का मौका मुझे मिला, मैं आपको धन्यवाद भी देती हूँ। 2 दिन के बाद में नए साल की शुरुआत भी होगी, लेकिन हमारी शुरुआत तो 2080 से हो गई। राम मंदिर के भव्य निर्माण के साथ में विक्रम संवत 2080 हमारे लिए बहुत अच्छी खबर लेके आए। और उसी क्षेत्र से आप आते हैं, यूपी से आते हैं, और यूपी में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर की शुरुआत, स्टेशन भी बन गया, नया एयरपोर्ट भी बन गया। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा तोहफा हम लोगों को दिया। हम सब इससे बहुत उत्साहित है, और सच में ये विकसित भारत का जो संकल्प है वो करते हुए कार्य में हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दर्शनाबेन। मैं और 5 शहीद परिवारों को सम्मानित करके शौर्य राशि के चेक अर्पण करने के लिए मैं विनती करता हूं आदरणीय रक्षा मंत्री जी को। और उनके साथ जुड़ेंगे हमारी संस्था की ओर से आदरणीय सौजी भाई धोलकिया, आदरणीय लालजी भाई पटेल, आदरणीय मनहर भाई सासपरा, हमारे गुजरात राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय प्रफुल्ल भाई पानशेरिया, और संस्था के मंत्री श्री सीपी वानाणी। ये सारे लोग जुड़ेंगे आदरणीय रक्षा मंत्री जी के साथ। और 5 शहीद परिवार है, जिसमें से पहला है शंकर प्रसाद रामदास पटेल, जिनके बेटे सुरेंद्र पटेल और उनकी बहू प्रज्ञा जी पटेल यहां पर उपस्थित है। फ्लैग, तिरंगा। दूसरे शहीद है मनदीप सिंह जी, जिनकी माताजी और उनकी धर्मपत्नी यहाँ उपस्थित हुए। माताजी बलविंदर कौर जी और उनकी धर्मपत्नी जगदीप कौर जी यहाँ उपस्थित है। आदरणीय शहीद मनदीप सिंह जी का परिवार अब आएगा। आदरणीय शहीद मनदीप सिंह जी का परिवार अब मंच पर उपस्थित है। आदरणीय शहीद चितरंजन कुमार जी, जिनकी धर्मपत्नी जूही कुमारी जी है, और उनके साथ आए सोनू सिंह जी। आदरणीय शहीद चितरंजन कुमार जी के परिवार के बाद शहीद
वीर शहीद सेवक सिंह जी का परिवार यहाँ उपस्थित है। उनकी माताजी और उनके पिताजी यहाँ पर उपस्थित है। माताजी परमजीत कौर जी और पिताश्री चरण सिंह जी यहाँ पर उपस्थित है। सम्मान स्वीकारेंगे और शौर्य राशि का चेक भी उनको दिया जाएगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी के हाथ से। और इसके बाद हमारे वीर शहीद लालफाम कीमा जी का परिवार यहाँ उपस्थित है। उनकी धर्मपत्नी लालजार लियानी और उनके साथ है लालनांग लियाना, दोनों आगे आएंगे। वीर शहीद लालफाम कीमा का परिवार है। इसके बाद मैं मंच पर निमंत्रित करूंगा भाविन शास्त्री को, है कि जिनकी नामना पूरे विश्व में है और सर के आने से पहले और आने के बाद देशभक्ति का समाज इसने बांधा है। मैं विनती करता हूं कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी सम्मानित करें कि आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद देशभक्ति का पूरा माहौल इन्हीं की वजह से है। बहुत विश्वविख्यात सूफी संगीत के कलाकार है और आजकल राम मंदिर की, रामलल्ला की प्रतिष्ठा की बात पूरे देश के कोने कोने में ये फैला रहे हैं ऐसे भाविन शास्त्री। और इसके बाद मैं विनती करूंगा आदरणीय रक्षा मंत्री जी को कि शहीद परिवार के सम्मान और शौर्य राशि अर्पण के इस मारुति वीर जवान ट्रस्ट के कार्यक्रम में अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। वीर शहीद अमर रहे, बोलेंगे वीर शहीद, वीर शहीद, वीर शहीद। हमारी भारत सरकार की मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश, फाउंडर प्रेसिडेंट मारुति वीर जवान ट्रस्ट श्री नानू भाई सवालिया, चेयरमैन मारुति वीर जवान ट्रस्ट लालजी भाई डालिया और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में एजुकेशन मिनिस्टर श्री प्रफुल्ल भाई पंसेरिया, मेयर सूरत सिटी दक्षेश भाई मवानी, चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिस्ट फ्रंट हमारे मित्र श्री एमएस बिट्टा, श्री माथुर भाई सवानी पद्मश्री, श्री लालजी भाई पटेल, श्री प्रवीण भाई घोघारी एमएलए, श्री सावजी भाई ढोलकिया पद्मश्री, श्री गोविंद भाई ढोलकिया, श्री निरंजन भाई जजमेरा प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी। और इस कार्यक्रम में मौजूद हमारे सभी मारुति वीर जवान ट्रस्ट के ट्रस्टी और हमारे शहीद परिवारों के सभी सम्मानित सदस्य, पत्रकारगण और इस मैदान में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो मैं मारुति वीर ट्रस्ट के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस बहुत ही संवेदनशील लेकिन भव्य कार्यक्रम में मुझे भाग लेने के लिए आयोजित किया है, आमंत्रित किया है। और मैं जानता हूं बराबर नौजवानों के साथ हमारा रक्षा मंत्री होने के नाते रिश्ता बना रहता है, उनके परिवार के सदस्यों से भी मिलता रहता हूं, जवानों से भी हमारा संवाद का सिलसिला चलता रहता है और उनके परिवारजनों के साथ भी हमारा संवाद का सिलसिला चलता रहता है। मैं कभी यह विचार करता हूं वह कौन सा जज्बा है, वह कौन सा भाव है कि हमारे जवानों को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत की सीमाओं की रक्षा करने की प्रेरणा देता है।
तो मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय चाहे चंद्रशेखर आजाद रहे हों, सरदार भगत सिंह रहे हों, खुदीराम बोस रहे हों, अशफाकुल्ला खां रहे हों, उनके अंदर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी कि उन्होंने भारत माता के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। और आज भारत आजाद होने के बाद भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने का कोई काम कर रहा है तो हमारे भारत के सेना के जवान कर रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती है कि हम आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे। अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं तो इस देश के लिए करते हैं। और उनके लिए मारुति वीर जवान ट्रस्ट ने जो इस गुजरात की धरती पर अभियान प्रारंभ किया है, मैं उनका सामान्य अभिनंदन नहीं करता हूं, बल्कि शीश झुकाकर मारुति वीर जवान ट्रस्ट का मैं अभिनंदन करता हूं। मैं समझता हूं कि गुजरात की भूमिका यह करिश्मा है। यह गुजरात आदि कवि नरसिंह मेहता की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने भक्ति और साहित्य के माध्यम से पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, यह भी उन्होंने ही कहा था। और आज इस मारुति वीर जवान ट्रस्ट के कार्यक्रम में इस पंक्ति को सार्थक होते हुए प्रत्यक्ष मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। बहनों भाइयों, यह गुजरात की धरती राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जन्मभूमि है, जिन्होंने अपने आदर्शों और सिद्धांतों से भारतीय समाज के मन के अंदर न्याय और स्वतंत्रता के प्रति एक हसरत जारी की थी, एक आकांक्षा पैदा किया था। गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है, जिन्होंने की भारत को की एकता और अखंडता के लिए जो कुछ भी बनता था वह किया। शायद आज हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल न रहे होते उस समय, तो हमारा भारत आज एक न रह पाता, हमारा भारत अखंड न रह पाता। गुजरात इस राज्य के बारे में मैं जानता हूं। गुजरात यह सैनिकों की भी जन्मभूमि है, जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर भारतीय सीमाओं की मजबूती के साथ रक्षा की है। और गुजरात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की भी यह धरती है, जिन्होंने सारे भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में भारत के कद को ऊंचा किया है। मेरे बहनों भाइयों, आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में चले जाइए, लोग सामान्य तौर पर बड़े सहज तरीके से, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा विकसित देश क्यों न हो, दुनिया का चाहे कितना बड़ा धनवान क्यों न देश हो, वहां के प्राइम मिनिस्टर, वहां के प्रेसिडेंट, वहां के मिनिस्टर्स यह कहते हैं कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला यदि कोई देश है तो उस देश का नाम भारत है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा मेरे बहनों भाइयों बढ़ी है। भारत का कद ऊंचा हुआ है। इसका श्रेय यदि किसी को दिया जाना चाहिए तो गुजरात के हीरे नरेंद्र भाई जी मोदी को दिया जाना चाहिए। साथियों, इस गुजरात की धरती से मेरा भी लगाव है। जब भी मैं गुजरात, इसके पहले भी दो बार पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए भी, पार्टी का महामंत्री रहते हुए भी प्रवास पर आया हूं, तो स्वाभाविक रूप से मैं भावनात्मक रूप से गुजरात से जुड़ जाता हूं, क्योंकि दैव योग से मेरी मां का नाम भी गुजराती देवी है। मेरे बहनों भाई, और जब मैं गुजरात आता हूं, यहां के लोगों का प्रेम और व्यवहार सचमुच हमारे हृदय में एक मिठास भर देता है। ऐसा स्वभाव है गुजरात के रहने वालों को। आप सबने मुझे तो एक रक्षा मंत्री के रूप में यहां पर आमंत्रित किया है, लेकिन बहनों भाइयों, मैं यहां पर रक्षा मंत्री के रूप में नहीं हूं, बल्कि मैं एक ऐसे नागरिक के रूप में मैं यहां आप सबके बीच उपस्थित हूं, जिसके हृदय में हमारे देश के
शहीद सैनिकों के प्रति एक कृतज्ञता का भाव है। एक ऐसे इंसान के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हूं। और जहां तक बात रही मारुति वीर जवान ट्रस्ट की, तो मैं ये कहना चाहता हूं इस ट्रस्ट के लोगों से कि मैं सदैव आपके लिए मैं मौजूद हूं, क्योंकि आप इसलिए मौजूद हूं क्योंकि आप हमारे देश के शहीदों और सैनिकों की चिंता कर रहे हैं। और मैं तो आप सबसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि मारुति वीर जवान ट्रस्ट का एक बार अभिनंदन हाथ उठाकर तालियां बजाकर किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं उन शहीद जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, भारत की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपना बलिदान दे दिया। मैं उनके माता पिता और परिजनों का भी आप सबके सामने भी शीश झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं। विनम्रता पूर्वक आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आपने ऐसे लाल पैदा किए जिसने अपनी जिंदगी की चिंता नहीं की और भारत आज चमक रहा है। तो मैं समझता हूं कि हमारे वीर जो सेना के जवान हैं, जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उनके बलिदान के कारण आज भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में चमक रहा है। मेरे बहनों भाइयों, साथियों, मैं पहले भी कई मंचों पर इसका जिक्र कर चुका हूं और आप सब भी जानते हैं कि इस राष्ट्र के सीमा के भीतर जो भी कोई काम कर रहा है, चाहे वह कोई साइंटिस्ट हो, चाहे वह कोई व्यापारी हो, चाहे किसी भी पेशे में लगा हुआ कोई व्यक्ति क्यों न हो, चाहे हम लोग सरकार चला रहे हों, सभी आज यह काम यदि कर पा रहे हैं तो इसलिए सीमा पर तैनात हमारे बहादुर सेना के जवानों ने यह संकल्प लेकर प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना अपने कलेजे में भरकर हमारे भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। इसलिए निश्चिंत होकर हम अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर पा रहे हैं। हम और आप इंडिया फर्स्ट के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। अब यदि इंडिया फर्स्ट को फॉलो करना है तो उस रास्ते में भी सिक्योरिटी सबसे पहले आती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फर्स्ट का कंसेप्ट ये इंडिया फर्स्ट के कंसेप्ट के साथ ही आता है। साथियों, जब कोई माली पौधा लगाता है तो उसे पता नहीं होता है ये पौधा जब बड़ा हो जाएगा, फल देने लगेगा, फूल आने लगेंगे, तब मैं जिंदा रहूंगा अथवा नहीं रहूंगा। वैसे ही हमारा जवान जब सेना में दाखिला लेता है, सेना में जब भर्ती होता है, तो उसे भी यह पता नहीं होता है कि हम जैसा भारत बनाना चाहते हैं, भारत को जिस तरीके से हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ते हुए हम देखना चाहते हैं, यह देखने के लिए मैं इस धरती पर रह पाऊंगा अथवा नहीं रह पाऊंगा। बहनों भाइयों, उसके अंदर भी यह भाव होता है। जब सैनिक किसी युद्ध में जाते हैं तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि वह युद्ध की समाप्ति के बाद युद्ध के विजय का उत्सव मनाने के लिए उस उत्सव के कार्यक्रम में वह शिरकत कर पाएंगे, वह शामिल हो पाएंगे। उन्हें इस बात की भी कल्पना नहीं रहती। एक सैनिक जब पूरी सामर्थ्य के साथ, मेरे बहनों भाइयों, मातृभूमि के लिए लड़ता है तो उस समय सैनिक के अंदर यह भाव निकलकर सामने आता है, एक ही भाव, तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे न रहे। यही भाव हम सबके भी अंदर होना चाहिए। सैनिकों का कर्तव्य है, मेरे बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं उनका यह कर्तव्य, उनका यह दायित्व अपने में बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि उन्हें पता है कि रोज उनका सामना मृत्यु से होना है। यह वह बात जानते हैं कि कहीं से भी दुश्मन की कभी भी कोई गोली आ सकती है और वह वीर गति को प्राप्त हो सकते हैं। इसको जानते हुए भी अपना सीना चौड़ा करके, अपना सीना खोलकर सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे सैनिकों के अंदर इस राष्ट्र की सुरक्षा और इस राष्ट्र की जनता के प्रति एक प्रेम का भाव है और उनके अंदर भी एक राष्ट्रीय स्वाभिमान की एक प्रखर भावना है। साथियों, मैं समझता हूं एक समाज के रूप में हम सामूहिक रूप से अपने सैनिकों के ऋणी हैं, हम अपने सैनिकों के कर्जदार हैं।
अतः देशभक्ति की सामूहिक भावना के साथ, पैट्रियाटिक नेशनल स्पिरिट के साथ भारतीय वीर जवान ट्रस्ट इस देश के शहीदों का तथा उनके परिवारजनों का जो सम्मान कर रहा है, वह सिर्फ उनकी तरफ से नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि राष्ट्र के तरफ से भी शहीदों के प्रति एक यह बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि है। साथियों, मुझे बतलाया गया है कि इस ट्रस्ट के अनेक मेंबर्स डायमंड बिजनेस से आते हैं। अभी ढोलकिया जी और बहुत सारे लोगों से हमारी भेंट हुई। मैं जानता हूं ये सब लोग डायमंड बिजनेस से आते हैं। बात जब हीरे की आती है तो पूरी दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बन जाती है। जब भी हीरे की बात आती है, भारत में तराशे गए हीरे, विशेषकर सूरत में तराशे गए हीरों की सारी दुनिया में मांग होती है मेरे बहनों भाइयों, क्योंकि मैं जाता हूं और दुनिया के लोगों से जब यहां के हीरों की चर्चा मैं सुनता हूं तो मेरा भी सीना चौड़ा होता है। और आप सब तो जानते ही होंगे कि हीरे के इस व्यापार को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यहां पर एक डायमंड एक्सचेंज बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बुर्ज, डायमंड बुर्ज की स्थापना हुई है, जिसकी ऑफिस प्रीमाइस दुनिया में किसी भी प्रीमाइस से, किसी भी परिसर से बड़ी है बहनों भाइयों। यह भी केवल गुजरात के लोगों के लिए नहीं, बल्कि समस्त भारतवासियों के लिए भी यह गौरव का विषय है। मुझे पूरा विश्वास है कि सूरत का वह परिसर हीरे के व्यापार के लिए तथा उसके व्यापारियों के लिए एक समृद्धि के एक नए आयाम देगा। साथियों, हीरो को निकालकर उसे तराशने का काम और उसे बाजार तक ले जाने का काम यदि कोई करता है तो व्यापारी करता है। और कोई भी व्यापारी जब हीरे का व्यापार करता है तो उसके लिए डायमंड बिजनेस पर्सन में कुछ क्वालिटीज भी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी यह होती है कि उसमें हीरे को परखने की अद्भुत क्षमता होती है, और ऐसा ही व्यक्ति हीरे का व्यापार कर सकता है। असली हीरे की एक अद्भुत चमक होती है, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वह नायाब होता है, उसकी कीमत भी करोड़ों में हुआ करती है। इसलिए व्यापारी को यह कला आनी चाहिए कि वह हीरों की पहचान कर सके। जिस तरह से सूरत डायमंड ट्रेड का सिरमौर है, इसका मतलब यह हुआ कि असली और नकली हीरे की पहचान के मामले में पूरी दुनिया में यदि किसी पर भरोसा किया जाता है तो आप सब पर भरोसा किया जाता है मेरे बहनों भाई। वैसे भी जब हीरों की बात आती है तो मैं सिर्फ उस हीरे की बात नहीं करता हूं जो जमीन से निकलता है। कुछ हीरे पत्थर के रूप में जमीन से निकलते हैं, तो वहीं कुछ हीरे इंसान के रूप में होते हैं जो अपने व्यवहार से, वो अपने संस्कारों से निर्मित होते हैं। कोई हीरा ऐसा है जो गरीबों की मदद करता है, कोई हीरा ऐसा है जो गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम करता है, कोई हीरा ऐसा है जो दिव्यांगजनों की सेवा करता है। ठीक उसी प्रकार एक ऐसा भी हीरा होता है जो देश की सीमाओं की रक्षा करता है, यानी हमारे भारत के जवानों की तरह होता है। मेरे साथियों, आप सभी हीरों के व्यापारी ने मनुष्य के रूप में पाए जा रहे हीरे की पहचान की है, इसलिए मैं आप सबका मैं अपनी तरफ से पुनः अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको बधाई देना चाहता हूं। और आपने शहीदों के परिवारों को सम्मानित करने का जो ये फैसला किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसलिए मुझे लगता है कि आप सही मायनों में हीरे के व्यापारी हैं, आपको हीरे की सबसे अधिक उचित परख है, और आप ट्रू वैल्यू के रियल जज हैं। आप ट्रू वैल्यू के रियल जज हैं, तभी आप हीरों का व्यापार दुनिया भर में कर रहे हैं और भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और हिंदुस्तान के हीरों की पहचान करके उन्हें आप सम्मानित भी कर रहे हैं। इस दायित्व का भी आप निर्वाह कर रहे हैं। साथियों, वैसे देखें तो हीरों और हमारे सैनिकों के रूप में हमारे हीरों में कई समानताएं हैं। आप देखिए कि हीरा कैसे बनता है। मैं खुद साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूं और फिजिक्स का मैं अध्यापक भी रह चुका हूं, और मैं जितना जानता हूं
पता नहीं सही जानता हूं कि गलत जानता हूं, यह मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कोयले पर जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तब कोयला निखर कर हीरा बनता है। ठीक यही बात हमारे जवानों पर भी लागू होती है। हमारे कई सैनिक बहुत ही सामान्य परिवार से, गरीब परिवारों से भी जो आते हैं वह सेना में भर्ती होते हैं, फिर देश के लिए कुछ कर गुजरने का उनके अंदर जज्बा होता है, वह सेनाओं में शामिल होते हैं। और अब सेनाओं में जब वो आते हैं तो सेना की लाइफ कितनी कठिन होती है, कितनी टफ होती है, मैं प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखता हूं। हालांकि सरकार उनके लिए सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखती है और जो भी उन्हें हथियार चाहिए, जो भी फैसिलिटीज चाहिए, वह भी प्रोवाइड करने का काम हमारी सरकार करती है। वह सब सरकार करती है जिससे देश की सुरक्षा करने का जो रास्ता उन्होंने चुना है वह रास्ता कठिनाइयों और खतरों से भरा होने के बावजूद उन्हें पूरी तरह से मदद मिल सके। सेनाओं में कभी थार डिजर्ट में, थार में चली जाइए, -25 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस कभी हमारे जवान को जाना पड़ता है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जहां टेम्परेचर का वेरिएशन इतना हो, वहां जिसको जाना पड़े और कुछ महीनों के बाद ही जाना पड़े, क्या उसकी स्थिति होगी, आप सहज में ही इसकी कल्पना कर सकते हैं। साथियों, यह जो हीरे हैं उन्होंने अपनी चमक से इस देश पे कभी अंधेरा नहीं आने दिया है और कभी अंधेरा नहीं आने देंगे। इस देश के संरक्षण मंत्री के रूप में आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जो मैंने उनके अंदर जज्बा देखा है उस आधार पर मैं कह रहा हूं, जिस प्रकार की प्रखर राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना हमने उनके अंदर देखी है, उस आधार पर कह रहा हूं, अब जब जब अवसर मिला तब तब ये और चमकदार बनकर हमारे वीर सैनिक सामने आए हैं, दुनिया के सामने आए हैं। और हमारी सरकार भी इनके लिए जो कुछ भी बन सकता है वो अपनी तरफ से करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं जानता हूं सैनिकों के लिए, हमारे शहीद परिवारों के लिए जितना भी किया जाए वह अपने में कम है। कई बार तो ऐसे भी अवसर आए हैं मेरे बहनों भाइयों कि वीर गति को प्राप्त हो जाने के बाद भी एक कृतज्ञ राष्ट्र के नागरिक के रूप में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह तो करते ही हैं, लेकिन सचमुच यदि वह मानते हैं कि अपने में पर्याप्त है तो मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि जितना भी उनके लिए किया जाए वह कम है। जिस माता पिता ने ऐसे हीरो को जन्म दिया है, जिस भाई बहन पत्नी और बेटे बेटियों ने उस हीरे को तराशा है, उसका ख्याल रखना केवल शासन की ही जिम्मेदारी नहीं है। मैं समझता हूं कि हर राष्ट्रीय स्वाभिमान के धनी भारत की नागरिकों की जिम्मेदारी भी यह बनती है। और विशेष रूप से इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए भारतीय जवान, वीर जवान ट्रस्ट जो भूमिका निभा रहा है उसकी जितनी ही प्रशंसा की जाए वह कम है। साथियों, एक बात और मैं आप सभी के सामने रखना चाहूंगा और आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी कुछ लोग राष्ट्रवाद को स्वार्थ के आगे कमजोर समझते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि देश प्रेम जैसी चीजें ये सेकेंडरी होती है, दोयम स्तर की होती है। अपना स्वार्थ और अपना पैसा ये सबसे ऊपर होता है। और वो लोग तर्क क्या देते हैं, वो कहते हैं व्हेन मनी टॉक्स या व्हेन मनी स्पीक्स एवरीबडी लिसन्स। व्हेन मनी स्पीक्स एवरीबडी लिसन्स। साथियों, ऐसा नहीं है कि पैसे का महत्व नहीं है, वो पैसे का महत्व नहीं है। किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र के संचालन में धन का महत्व होता है, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। बिना धन के न तो आप अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और ना बिना धन के आप राष्ट्र और समाज का जो विकास करना चाहते हैं वह विकास कर सकते हैं। देश में चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आदि पर भी निवेश करने के लिए, इन सब सारे कामों को पूरा करने के लिए भी धन की आवश्यकता है। लेकिन धन ही जीवन में सब कुछ है, ऐसा मान लेना भी कभी उचित नहीं है। और एक कहावत भी है कि मनी इज ए मीन्स नॉट एन एंड। धन एक साधन है,
साध्य नहीं है, यह जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि इस ट्रस्ट के द्वारा शहीदों का सम्मान यह दिखाता है कि देश प्रेम इस ट्रस्ट के लोगों की प्रायोरिटी है, इनकी प्राथमिकता है। इसलिए पुनः मैं इस ट्रस्ट के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आप लगातार अपने धन से न सिर्फ अपने समाज और देश का भला कर रहे हैं, बल्कि आप इस धन का सदुपयोग हमारे शहीदों के सम्मान और उनके परिवार की देखभाल के लिए भी आप सब कर रहे हैं। और मैं कह सकता हूं, व्हेन मनी स्पीक्स एवरीबॉडी लिसन्स, यह कहने वाली बात जो है यह गलत है, बल्कि मैं कहना चाहता हूं भारत के नागरिकों के बारे में कि व्हेन इंडियन नेशनल इंटरेस्ट स्पीक्स, इंडियन नेशनलिज्म स्पीक्स, इंडियन मनी लिसन्स। बहनों भाइयों, जब भारत की राष्ट्रीय भावना जब बोलती है, भारत का जब राष्ट्रवाद बोलता है, यहां जिनके पास धन है वह भी अपने खजाने को खोल देते हैं, खजाने की तिजोरी खोल देते हैं। बहनों भाइयों, ऐसा भारत है। यह करके मारुति वीर जवान ट्रस्ट ने इसे दर्शाया है, इसे सिद्ध किया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, भारत के बिजनेसमैन और अधिक ऊंचाइयों पर जाएं और अपना स्थान बनाएं, और अधिक आप ऊंचाइयों पर जाइए और आप चुनिए। हिंदुस्तान में जितने ऐसे भी शहीद परिवार हैं, कोई परिवार ऐसा बचना नहीं चाहिए जिसकी किसी न किसी भी प्रकार से एक बार मदद न हो जाए, और बल्कि इनकी संख्या और आप बढ़ाएं। यह मेरा आपको सुझाव है कि परमात्मा ने आपको कोई कमी नहीं दे रखी है, मैं जानता हूं। और आप सबके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए ही भारत सरकार ने इनमें से कुछ लोगों को पद्मश्री की उपाधि से नवाजा है। मेरे बहनों भाइयों, इसी भाव को देखते हुए मैं फिर से अपने वीर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके परिवारजनों के प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति करते हुए और यहीं पर मारुति वीर जवान ट्रस्ट के प्रति भी एक आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रक्षा मंत्री जी का। मैं पूरे प्रोग्राम की अंतिम 5-7 मिनट के बारे में बताऊं। सबसे पहले राष्ट्रगीत के पहले कोई अपना स्थान न छोड़े, ऐसी प्रार्थना है। इसके बाद રાષ્ટ્રગીત होने वाला है। આના પછી રાષ્ટ્રગીત થવાનું છે, ત્યાર પહેલા આપ આપનું સ્થાન જાળવી રાખશો એવી વિનંતી છે। અત્યાર પછી કાર્યક્રમ માત્ર થોડી મિનિટોનો છે। આભાર વિધિ થશે। રાષ્ટ્રગીત આપણે આપણા સ્થાન ઉપર ઉભા થઈને જ્યારે અહીંયાથી કહેવામાં આવે ત્યાર પછી એમાં જોડાઈશું। ત્યાર પછી આદરણીય રક્ષા મંત્રીજીએ કહ્યું છે કે હું માત્ર 10 જ શહીદ પરિવારને મળી શક્યો છું, પણ મારે તમામ શહીદ પરિવાર